Hello and welcome dear students. Hope all of you are well and safe. So here I have come up with the chapter 4 of mathematics class 10. Okay. As I promised कि मैं मैथ्स भी पढ़ाऊंगा. So मैथ्स का चैप्टर में लेके आया हूँ chapter number 4 and the name of the chapter is quadratic equation. Okay. So let us start the chapter. Quadratic equation. Now before understanding quadratic equation आप लोग को पता होना चाहिए कि polynomial होता क्या है. Polynomial, ठीक है, polynomial. Now polynomial, if you do not understand, I do suggest you that you must look for the chapter polynomial which is there in the playlist. Clear? Okay. नो पोलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 2 टर्म्स रहता है. तो पोलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पर मोर देन 2 टर्म्स है. ओके. एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहेंगे? ए पोलिनोमियल इन विच, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल और द डिग्री वुड बी 2. डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है. और जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है? 2 है, उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल. So what would be the standard form of the polynomial? Standard form क्या होगा? Standard form of the polynomial would be ax square plus bx plus c equals to 0. Okay, so clear? Now we'll move ahead. एकदम to the point पढ़ाऊंगा, ज्यादा पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, एकदम to the point पढ़ेंगे और आसानी से चैप्टर को कवर करेंगे. Clear? Now we'll move into the exercise 4.1. यहां पर क्या बोला गया है पहले वो देखते हैं. बोला गया है कि check whether the following are quadratic equations. नीचे दिए गए equations quadratic equations है कि नहीं है, that one you need to check. How can you check out? You just try to form out of the given questions the standard form of quadratic equations. Okay, मतलब नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें से आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए. अगर बन जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर नहीं बनता है तो देन इट कांट बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, लेट अस टेक वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन लेते हैं. पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर. यहां पर ही कर लेता हूं ना. ओके, x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ओके, equal to 2 into x minus 3. Okay, let us try to form a quadratic equation. How can we do that? Now x plus 1 इसका होल स्क्वायर हम लोगों ने क्लास 8 से ही सीख के आ रहा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर एल्जेब्रिक इक्वेशन का पहला फॉर्मूला जो हम लोगों ने सीखा था एल्जेब्रा का is a square plus twice ab plus b square. Okay, try to apply the formula here. तो x square plus twice ab 2 into x into 1 b twice x plus b square is 1 and multiply here twice x minus 6. Okay, अभी क्या हो जाएगा? bring it in the left hand side, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं उसको. x square plus twice x minus twice x plus 1 minus 6 इधर आ गया तो we can write it as plus 6. X equals to 0. Now x square plus twice x minus twice x cancel. 6 plus 1 becomes 7 equals to 0. Now can it be a quadratic equation? Yes, it can be. कैसे मैं आपको बताता हूं. We can write it as x square plus 0 into x plus 7 equals to 0. So it means that it can be written in the form standard, that is what quadratic equation requires. So इसे हम कहेंगे कि it is a quadratic equation. Clear?
quadratic equation. Understood? Moving into the next question. Next question में देखते हैं. Okay. x square minus twice x यहीं पर कर लेते हैं. यहां पर करते हैं. Question is x square minus twice x equal to minus 2 into 3 minus 6. Let us check it out. तो x square minus twice x यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करिए. माइनस 2 into 3 become minus 6. माइनस माइनस प्लस twice x. Bring it back. x square minus twice x प्लस twice x इधर लाएंगे तो माइनस twice x बनेगा और माइनस 6 इधर लाएंगे तो प्लस 6 बन जाएगा इक्वल टू 0. तो x square minus 4x प्लस 6 इक्वल टू 0. सो इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. कौन सा फॉर्म में है ये? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में है. दैट्स व्हाई इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्लियर? ओके. इन द सेम वे यू नीड टू डू इट. इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा. और एक कर लेते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा. नंबर 7. लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं. ओके. नाउ x प्लस 2 इसका होल क्यूब है इक्वल टू ट्वाइस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. इन द सेम वे विल डू a प्लस बी होल क्यूब का एक फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा. व्हाट इज इट? a क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला. ओके. राइट इट हियर. a क्यूब तो x का क्यूब तो x क्यूब ही होगा प्लस थ्राइस a स्क्वायर b तो 3 इंटू a स्क्वायर हो गया x स्क्वायर इंटू b हो गया 2 तो 3 2 6 x स्क्वायर. थ्राइस ab स्क्वायर 3 इंटू a इज थ्राइस x b स्क्वायर इट इज 4 4 3 12 12x प्लस b क्यूब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा. इन दिस वे 2x से अगर हम मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर को इट बिकम्स 2x क्यूब. क्लियर? अगेन प्लस माइनस माइनस 2x. ब्रिंग इट बैक. ट्रांसपोजिशन x क्यूब वाला लाते हैं माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर. x स्क्वायर वो भी नहीं है 12x प्लस ट्वाइस x प्लस 8 इक्वल्स टू 0. नाउ x क्यूब माइनस ट्वाइस x क्यूब इज माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x एंड 2x दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0. नाउ वी कैन नॉट डू एनीथिंग. Now, can it be written in the standard form x square plus bx plus c equals to 0? We can't write because here the degree is 3 and quadratic equation में degree कितना होना चाहिए 2. So it is not a quadratic equation. ये quadratic equation नहीं है equation. Clear? Now listen. आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो तभी फॉर्म हो सकता है जहां पर डिग्री कितना होगा 2 और जहां पर डिग्री 2 से ज्यादा हो जाता है इट कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर है? ओके. नाउ डोंट गेट अफ्रेड कि ये सब जो मैं आप लोग को करा रहा हूं कहां मिलेगा. ये सब नीचे दिए गए एक ऐप मिले होगा आपके पास. ऐप में आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा. वहां पर यहां पर जो भी मैं करा रहा हूं the same thing you will be getting there. Clear? Same जैसे है वैसे ही PDF मिल जाएगा. Clear? Moving ahead. So अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ चुका होगा तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 का 1 करते हैं. ओके. The question is represent the following situation in the form of quadratic equation के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है. इसको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है. सो लेट अस डू. क्या बोला? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ओके. ब्रेथ का 2 गुना से 1 ज्यादा है. 1 यूनिट
ज्यादा है। ओके, ब्रेथ का 2 गुना से 1 यूनिट ज्यादा है और एरिया कितना दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, आपको समझना पड़ेगा। नाउ व्हाट वी रिक्वायर वो देखते हैं। shapes, we need a rectangle, so yes, this can be a rectangle. Okay, so we got a rectangle here, name it is A, B, C and D. Okay, that portion इसको कहा जाता है लेंथ, ये वाला है ब्रेथ। क्लियर, लेंथ एंड ब्रेथ तो हो ही चुका है। अच्छा, अभी क्या है देखिए, अभी क्वेश्चन में एरिया चाहिए। तो व्हाट वी नो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें क्या पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, एज पर क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन हम लोग लेट पकड़ लेते हैं, लेट ब्रेथ बी एक्स, मीटर, मीटर बोला, ब्रेथ को एक्स पकड़ा तो लेंथ क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन है कि ब्रेथ का 2 गुना से 1 यूनिट ज्यादा है, तो 2 गुना कितना होगा, ट्वाइस एक्स, 1 यूनिट ज्यादा प्लस 1 मीटर। ओके, एंड क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 528 मीटर स्क्वायर। नाउ वी नो दैट लेंथ इनटू ब्रेथ इज एरिया, तो लेंथ का वैल्यू है x और ब्रेथ है ट्वाइस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 528। क्लियर, मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू ट्वाइस एक्स बिकम ट्वाइस एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस x इंटू 1 बिकम x प्लस 528, इधर ला लेते हैं तो 528। क्लियर, सो वी गॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मिल चुका है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको माइनस के फॉर्म में है पर प्लस सी के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। सो इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्लियर, होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। ओके, मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Okay. We just need to form quadratic equation. We do not require to solve it. The product of two consecutive positive integer is 306. We need to find the integers. हमें integers निकालना है, ठीक है। We need to find the integers. तो कैसे निकालेंगे, we need to find the integers. How can we find it? Okay, question है अपने पास, तो let two product of two consecutive positive integer, let the integers are positive है, तो पहले को x पकड़ लेंगे, उसका consecutive मतलब नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा x प्लस 1। ओके, दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का प्रोडक्ट बताया गया है कितना 306, तो x इंटू एक्स प्लस 1 becomes 306. Okay, after solving it we can find out x into x become x square, x into 1 is x plus 306 को अगर मैं इधर लाऊं तो minus 306. so it is a quadratic equation. okay, बन चुका है एक quadratic equation. क्लियर, अभी हम लोग करेंगे नंबर 3। मैथ्स देखिए, मैथ्स बहुत ही आसान होता है बट उसको समझने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी उससे 26 साल ओल्डर मतलब बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ
will be 306. क्लियर? देखिए कैसे करते हैं. Let percentage of रोहन, तो क्या मैं वही तो निकालना है, percentage of रोहन x years. Okay. Rohan's mother's age. Rohan's mother's age उससे 26 साल बड़ा है. बोला है ना 26 ईयर ओल्डर देन हिम. तो रोहन का एज अगर हम लोगों ने x पकड़ा तो उसका मम्मी का ज्यादा है तो प्लस कर देंगे x प्लस 26 ईयर्स. क्लियर? अभी क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 इयर्स फ्रॉम नाउ इट विल बी 360. अब से 3 साल बाद उन दोनों का एज का प्रोडक्ट होगा 360. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब से 3 साल बाद तो रोहन का एज भी बढ़ेगा और उसको मम्मी का एज भी बढ़ेगा. तो रोहन का एज क्या होगा, अभी अगर x है तो 3 साल बाद होगा x प्लस 3. ओके, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है. और अभी उसको मम्मी का एज अगर x प्लस 26 है तो 3 साल बाद और बढ़ जाएगा, प्लस 3 कर दिया. और उन दोनों का एज का प्रोडक्ट होगा 360. ओके, वी डू नॉट रिक्वायर टू सॉल्व इट. x प्लस 3 ये कितना हो गया, x प्लस 29 इक्वल टू 360. नाउ जस्ट वी नीड टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर. x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 29x 36 प्लस कितना हो गया 87 360. अभी कर लीजिए x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 36 हो गया 32x प्लस 87 और माइनस 360 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू 0. कितना हुआ x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस, बट 360 बड़ा है इसलिए साइन बड़े वाले का बैठाएंगे. 10 माइनस 7 इट इज 3. ओके, 10 माइनस 7 कितना हुआ 3 हुआ. नाउ 15 माइनस 8 इट इज 7 and 2 273 equals to 0, and it is of the form of standard quadratic equation. Clear है? Okay, moving ahead, hopefully we have come into the last chapter, last question. hopefully क्वेश्चन में आप लोग को थोड़ा दिखाता हूं, अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं. कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले you just try to read the question at least 3 times. कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन हो, अगर आप लोग कितना पढ़ना है 3 टाइम पढ़ना है. अगर आप लोग 3 टाइम पढ़ते हो then the question definitely would become easier. Okay, क्वेश्चन क्या लिखा है वो देखते हैं. A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed. मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया 480 किलोमीटर. यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड बराबर हो रही है, स्पीड ऊपर नीचे नहीं हो रही है. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस. ओके, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होता देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर. तब टाइम लगता 3 घंटा ज्यादा टू कवर द सेम डिस्टेंस. ओके, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. इस तरीके का सम जब भी आप सोल्व करें, एक चीज आपको याद रखना है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड. ये याद रखना है. और स्पीड इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, ये 3 चीजें याद रखना है. एंड देन यू नीड टू मूव. ठीक है, अच्छा लेट द स्पीड, हम लोग स्पीड निकालना है तो स्पीड को ही पकड़ लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर एज ए वेरिएबल हम लोगों ने पकड़ा. लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर. क्लियर, स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने पकड़ लिया x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द ट्रेन.
अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, एक साथ ही सॉल्व करा सकते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो टाइम टेकन एंड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड अगर कम होता तो टाइम ज्यादा लगता, टाइम ज्यादा लगता। ओके, ध्यान से देखिए ना, if the speed is 8 is less is 8 kilometer per hour less, then न्यू स्पीड क्या बनती, x तो एक्चुअल स्पीड है, उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर हम माइनस कर देते। ओके, अगर ये स्पीड होता तो टाइम ज्यादा लगता। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया गया है वो देख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है 480 किलोमीटर, तो टाइम टेकन क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x। ठीक है, इसमें से जो टाइम लगता, ठीक है, और ये वाला स्पीड कम होने से टाइम ज्यादा लगता है कि नहीं, स्पीड कम होने से टाइम ज्यादा लगता, तो डिस्टेंस तो वही रहता है 480 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड अगर होती x माइनस 8 तो इसका जो टाइम लगता, ठीक है, वो ज्यादा लगता। देन एक्चुअल में जो स्पीड था 480 अपॉन x, कितना ज्यादा लगता, 3 घंटा हो गया, 3 आवर्स। ओके, कैसे किया हम लोगों ने, हमने जस्ट वही फॉर्मूला यूज किया है यहां पर कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसमें स्पीड ज्यादा है, इसमें स्पीड कम है, तो इसमें से अगर इसमें स्पीड कम है, टाइम ज्यादा है। ओके, टाइम और स्पीड का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, याद रखना। टाइम एंड स्पीड जो है उनका रिलेशन इनडायरेक्ट का होता है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। मतलब टाइम अगर बढ़ गया तो स्पीड कम होगी। एक्चुअली स्पीड के ऊपर टाइम डिपेंडेंट है, ये लिख ले। तो स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, और अगर स्पीड कम तो टाइम ज्यादा। ओके, वही चीज है। तो यहां पर स्पीड क्या है, कम है, तो टाइम ज्यादा लगा, इसीलिए इसका टाइम से अगर मैं ये टाइम को माइनस कर दूं, विल गेट 3 आवर्स। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला यूज किया गया है और कुछ नहीं। तभी हम क्या कर सकते हैं, इधर वो देख लेते हैं कि हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, x और x माइनस 8 का एलसीएम ले लेंगे। इधर x माइनस ऑलरेडी है तो 480 x से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस इधर x ऑलरेडी है तो 480 इंटू x माइनस 8 होगा, तो 4 इंटू x हो गया 480x। क्लियर, और माइनस 480, ठीक है, ये माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा इट बिकम्स प्लस। 480 इंटू 8, 0 तो अपना है ही, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 प्लस 6 38 हो गया, और इधर आ गया 3। ओके, हम नीचे भी चाहे तो मल्टीप्लाई करेंगे, अभी देख लो, अच्छे से देखना। ऊपर 480x कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 3840। ओके, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 8 इंटू एक्स 8x इक्वल टू 3। इक्वेशन बना लेते हैं, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वेयर माइनस 3 8 जा 24x, और ये इधर जाएगा तो प्लस फॉर्म में आएगा, ठीक है नहीं, और फिर ट्रांसपोज होके माइनस फॉर्म में आ जाएगा 3840। So we got our standard form. Clear? Hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट मैथ्स में आप लोगों को कौन सा चैप्टर में तकलीफ हो रही है, कौन सा चैप्टर में दिक्कत आ रही है, दैट वन ऑल्सो यू कैन इन्फॉर्म मी and I'll get back to you as early as possible. Thank you. Goodbye.